am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Last class we have discussed about the motion of the charged particles, how it produces a current and what are the relations for the magnetic force. तो हमने लास्ट क्लास ये दिखा था कि when a charged particle is moving in a conductor, then the magnetic force is developed is just like F equal to Q whole into V cross B, and another form is I whole into L cross B, and in both the cases both velocity and B vector, velocity vector and B vector magnetic field are perpendicular to each other, and also the force is perpendicular to the plane containing V and B, velocity and magnetic field. The direction of magnetic force is determined by Fleming's left hand rule. उसी डायरेक्शन के साथ ही उसी डायरेक्शन का साथ में क्या हुआ था ना, मेरा थंब रिप्रेजेंट कर रहा था मैग्नेटिक फोर्स. थंब विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फोर्स, forefinger will represent magnetic field, forefinger will represent magnetic field, and the middle finger will represent motion of charged particle, and these three fingers are mutually perpendicular to each other. These three fingers are mutually perpendicular to each other. That means if the forefinger points towards magnetic field and the middle finger is pointed towards the motion of the charged particle, then the thumb will give the direction of magnetic force on condition that these three are mutually perpendicular to each other. आज जो डिस्कशंस करेंगे, today we are going to discuss the motion of a charged particle in a magnetic field. Motion of a charged particle in a magnetic field. So that is all based on the about the directions. Motion of charged particle in magnetic field. Motion of charged particle in magnetic field. See here, what happens to the motion of the charged particle in a magnetic field? A charged particle can either move in the parallel direction of the magnetic field or in anti-parallel direction of the magnetic field, or it moves through the magnetic field in a perpendicular to the magnetic fields. देखो क्या होता है यहाँ पे. अच्छा ये मिटा देता हूं मैं. अच्छा ठीक है, यहीं पे साइड में लिखता हूं. अगर ये पैरेलल आया या एंटी पैरेलल आया, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा. when the charged particle moves parallel or anti-parallel to magnetic field, then theta equal to 0 डिग्री आएगा और f का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. f का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. तो मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा. क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा. इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स 0 आएगा. तो मुझे मेरा जो मोशन आएगा, मोशन किस तरह कौन से पाथ में आएगा ना, स्ट्रेट लाइन के पाथ में आएगा. मोशन कौन से पाथ में आएगा, स्ट्रेट लाइन के पाथ में आएगा. आया समझ में कि नहीं. When the charged particle is moving along the direction of magnetic field, then the magnetic force acting on the charged particle is 0, so the motion of the charged particle is a straight line. Motion of the charged particle is a straight line. चलो अब नेक्स्ट को चलते हैं. इसे मिटा देता हूं, इसे जरा याद रखना, काम में आएगा. सेकंड में क्या आएगा ना, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आएगा. मान के चलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में मैंने प्रोजेक्ट किया. किसके बीच में एंगल ना, B and V are perpendicular to each other. B and V are perpendicular to each other. That means the charged particle is moving perpendicularly. Charged particle is moving perpendicularly to the magnetic field. Charged particle is moving perpendicularly to the magnetic field. देखो कैसे होता है. Just imagine the magnetic fields are directed into the plane of paper. Magnetic fields are directed into the plane of paper.
and the charge particle is moving horizontally. Charge particle is moving horizontally. This cross symbol, just I have just assumed it. Cross symbol represents magnetic field. Magnetic field is directed. Magnetic field is directed into the plane of. These are the assumptions, nothing else. Magnetic field is directed into the plane of paper. These are the directions. Magnetic field is directed into the plane of paper, and the dot symbol represents magnetic field is directed. Magnetic field is directed outward from the plane of paper. From the plane of paper. Clear? Yes or no? Cross symbol represents magnetic field is directed into the plane of paper, and dot symbol represents magnetic field is directed outward from the plane of paper. So I am representing the magnetic field here, which is directed into the plane of paper. Magnetic field is directed into the plane of paper. So magnetic field is directed into the plane of paper here, and I am moving and charge in the horizontal directions. मान के चल कि यहाँ से कोई चार्ज मेरा ऐसे जा रहा था, यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल मेरा ऐसे चल रहा था। अब इसका डायरेक्शंस पता करना है। अब इसका डायरेक्शंस हमको पता करना है। देखिए डायरेक्शंस कैसे पता करते हैं। फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शंस। देखिए फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड चार्ज इज मूविंग इन दिस डायरेक्शंस। यस और नो? सो दिस विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स है, ये क्या इस तरफ चल रहा है। दिख इधर मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ चल रहा है, तो इसका मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा था मैग्नेटिक फोर्स के लिए, मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चलने लगेगा, या आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चलने लगेगा। हर कोई पॉइंट पे जब ये ऊपर की तरफ चलने लगेगा, हर कोई पॉइंट पे इसके साथ इधर ही मैग्नेटिक फोर्स, इधर मैग्नेटिक फोर्स, सारे मैग्नेटिक फोर्स अंदर के तरफ चलते हुए नजर आएंगे। इधर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा ना, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ और ये है मेरा क्या है, मोशन किस तरफ आएगा, मोशन इधर ऐसे ही चलते चलेगा। तो यहाँ पे मोशन कैसे आएगा, ऐसे अंदर, और ये ऐसे घुमा के, इसको ऐसे करोगे तो ये ऊपर की तरफ चलेगा। थोड़ा घुमाओ इसको, थोड़ा घुमाएंगे तो ये वाला अंदर की तरफ चलेगा। तो मान के चल कि ये एक पॉइंट आया जिसमें मेरा वेलोसिटी ऊपर की तरफ चलने लगेगा। मेरा वेलोसिटी किधर चलने लगेगा, ऊपर की तरफ चलने लगेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। अरे हाँ या ना, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड मोशन इज अपवर्ड। तो ये वाला होगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, मोशन अब आएगा मेरा अपवर्ड। तो ये वाला क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन पे आएगा, ये वाला आएगा मेरा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ये वाला आएगा मेरा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। क्या समझ में आ रहा है? जब मेरा चार्ज पार्टिकल इधर था तो यहाँ से ये मूव कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये वाला इनवर्ड गया और ये वाला वेलोसिटी में आया, और ये वाला ऊपर की तरफ फोर्स। तो ऊपर की तरफ फोर्स मतलब चार्ज पार्टिकल जो ऐसे जा रहा था अभी आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा, ऊपर की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट होना शुरू करेगा। अब एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, अरे डिफ्लेक्ट हो रहा है मतलब क्या, यहाँ पे वेलोसिटी इधर की तरफ आ रहा होगा ना, थोड़ा ऊपर के वेलोसिटी आ रहा होगा, मतलब इसी डायरेक्शन पे वेलोसिटी आ रहा होगा, मेरा आया समझ में। ये वाला फोर्स का डायरेक्शन, ये सारे फोर्स का डायरेक्शन से, फोर्स ही उसको अपने पाथ चेंज के लिए डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इधर आ जाएगा, वेलोसिटी इधर आया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, और ये वाला मेरा क्या हुआ, वेलोसिटी ऊपर की तरफ आया तो ये वाला क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा।
ये वाला क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं। अब ये यहां से घूमेगा फिर क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता डिफ्लेक्ट होते 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 ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होते 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 मान के चलो यहाँ पे चला, यहाँ पे आके रुका। और यहाँ पे फोर्स में वेलोसिटी मेरा किधर होगा, वेलोसिटी मेरा इधर होगा, हाँ कि नहीं। और फोर्स मेरा सब किधर होगा, फोर्स मेरा इस तरह का होगा, फोर्स मेरा इस तरह का होगा। आया समझ में कि नहीं। अब यहाँ से जब ऐसे घूमा, ये जब ऐसे घूमा यहाँ से, तो जो मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी किस तरफ जा रहा होगा, वेलोसिटी मेरा इस तरफ जा रहा होगा, वेलोसिटी इस तरफ जा रहा होगा। तो यहाँ से जब आया तो ये टेंजेंशियली हो गया, ये जब यहाँ से आया क्या हो गया, टेंजेंशियली हो गया। तो इधर देख मेरा मैग्नेटिक फोर्स कैसे आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और वेलोसिटी मेरा लेफ्ट के तरफ है, तो वेलोसिटी मेरा राइट के लेफ्ट के तरफ। देखिए ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ये वाला मेरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, ये वाला मेरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो ये वाला आएगा मेरा मैग्नेटिक फोर्स। आया समझ में कि नहीं। अब ये क्या करेगा, उसको ये क्या करेगा, उसको ना ये उसको और एक बार घुमाएगा और ये इसको एक और बार घुमाएगा फिर से। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। तो मान के चलिए ये यहां तक आ गया, ये यहां तक आ गया, थोड़ा इसको नीचे लेते हैं। ऐसा समझ में। तो अगर ये पॉइंट यहां पे आ गया, ये पॉइंट यहां पे आ गया, तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा, वेलोसिटी इस तरफ होगा, वेलोसिटी किस तरफ होगा, वेलोसिटी इस तरफ होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरह आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो ये वाला फोर्स किस तरफ आएगा, इधर आएगा, इधर फील्ड डाउन, फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी डाउनवर्ड, और ये वाला इधर। तो ये वाला मेरा मैग्नेटिक फोर्स चलेगा, ये वाला मेरा क्या चलेगा, मैग्नेटिक फोर्स चलेगा। आया समझ में। तो ये वाला क्या होगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कराएगा, मतलब डिफ्लेक्शन मेरा किस तरफ होगा, ना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, तो ये वाला ऐसे 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 आगे यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा। आया समझ में। तो हमने देखा कि भाई when the charge particle is moving perpendicularly to the magnetic field, charge particle is moving perpendicular to the magnetic field, then magnetic force is created and the path of the motion of the charge particle is circular. तो यहाँ पे मुझे क्या मिला ना, path of charge particle is circular, path of charge particle is circular मिला। और मुझे मैग्नेटिक फोर्स कितना मिलेगा भाई, थीटा इक्वल टू 90 है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या मिला मुझे ना, QVB sin 90, दैट इज इक्वल टू QVB। तो मैग्नेटिक फोर्स मुझे मिला क्या ना, QVB, इतना मैग्नेटिक फोर्स मिल रहा है। कब ना, when the charge particle is moving, when the charge particle positive charge particle is moving at right angle to the magnetic field, at right angle to the magnetic field. आया, then the path of the charge particle is circular, और ये आया फोर्स। और एक बात यहाँ पे है, और ये जो फोर्स अब आ रहे हैं ये टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहे हैं, जो फोर्स अब यहाँ पे आ रहे हैं ये टुवर्ड्स द सेंटर, देखने पता चलता है कि भाई ये जो सारे फोर्स जो है, सारे फोर्स अंदर की तरफ चल रहे हैं और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल्स को चल रहे हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल्स को चल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा होगा। अरे हाँ या ना, सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे प्रोवाइड कौन करेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कभी एक अकेला नहीं आ सकता, उसको एक सपोर्ट फोर्स चाहिए, कोई एक फोर्स ऐसा होगा वहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। आया समझ में। कोई भी तुम सब्सटेंस ले लो, कोई भी एक केसेस ले लो जहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है, वहां पे जाहिर सी बात है वहां पे कोई एक अलग force होगा, must be another force which provides the required centripetal force. Now as the charge particle is moving in a circular path, so there must be a centripetal force and the magnetic force provides the required centripetal force. आया समझ में कि नहीं। मैग्नेटिक फोर्स हमेशा, इस मैग्नेटिक फोर्स है इसीलिए तो बॉडी सर्कुलर में घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज Fm इक्वल टू Fc।
तो Fm का वैल्यू क्या आया मेरा QVB, Fc का वैल्यू आ गया मेरा mv स्क्वायर बाई, मान के चल कि इसका रेडियस है r, इसका भाई रेडियस है कैपिटल R, मान के चल कि इसके जो पाथ घूम रहा है इसका रेडियस है कैपिटल R, तो QVB इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ये v वेलोसिटी उसको घुमा रहा है, तो मुझे कैंसल आउट मिल गया, r इक्वल टू v से v कैंसल आउट, mv बाई QV, mv बाई QV, r इक्वल टू क्या मिला मुझे mv बाई QV। आया समझ में? ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है, आया समझ में? r इक्वल टू mv बाई QV, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ along with the charge particle moves, along with the charge particle moves, complete, and this v is responsible for the motion of the charge particle in a circular path। और ये v क्या है भाई? परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड को, v must be perpendicular to magnetic field, ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो भाई ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर में मूव नहीं करेगा। आया समझ में? चलो इसको मिटा दो और यहाँ से और एक बात करते हैं, स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, ये वाला याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डॉट इज डायरेक्टेड, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मुझे रेडियस मिल गया, मुझे अब टाइम पीरियड चाहिए, मुझे क्या चाहिए ना भाई? टाइम पीरियड चाहिए। मेरा टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा? टाइम पीरियड t इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। टाइम पीरियड t इक्वल टू डिस्टेंस क्या आया? 2 पाई r, डिस्टेंस क्या आया? 2 पाई r, वेलोसिटी v, वेलोसिटी क्या है मेरा? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो t इक्वल टू क्या मुझे मिला ना? 2 पाई, कैपिटल R का वैल्यूज क्या है ना? रेडियस है mv बाई QB डिवाइडेड बाई v, तो कैपिटल T इक्वल टू v से v कैंसल्ड आउट हो गया, 2 पाई m बाई QB, 2 पाई m बाई QB, तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई m बाई QB। आया समझ में? अब मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी, अब मुझे क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी। देखो इधर फ्रीक्वेंसी क्या है ना? f इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी क्या है फॉर्मूला? 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई टाइम पीरियड क्या है ना? 2 पाई m बाई QB, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है ना? QB बाई 2 पाई m, फ्रीक्वेंसी क्या है मेरा? QB बाई 2 पाई m। आया समझ में? अरे हाँ या ना? तो ये जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है उनके फॉर्मूले के बीच में देखो कहीं पे भी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। आया समझ में कि नहीं? टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज पार्टिकल्स, ये वाला एक बात याद रखना कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स, तो कितने वेलोसिटी से मूव करे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ देखता है कि मुझे मास चाहिए, चार्ज चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आया समझ में? और एक चीज यहाँ पे जो रेडियस का फॉर्मूला आया mv बाई QB, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा मेरा रेडियस उतना बड़ा होगा, वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा मेरा रेडियस उतना बड़ा होगा, और स्मॉलर बड़ा मास रेडियस बड़ा, छोटा चार्ज रेडियस बड़ा। आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? ना इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूं थोड़ा मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, radius is directly proportional to m, directly proportional to velocity, is inversely proportional to charge, ये वाला याद रखो, ये वाली बात याद रखो। आया समझ में? slow moving charge particles moves a smaller circle as compared to the high speed charge particles। जिसके पास स्पीड ज्यादा होगा उसका क्या होगा? रेडियस बड़ा होगा। आया समझ में? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारी चीज लिख लो, एक दो न्यूमेरिकल्स भी इसका करते हैं। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं? वन अल्फा पार्टिकल एंड ए ड्यूट्रॉन एंटर्ड परपेंडिकुलरली इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद सेम वेलोसिटी, व्हिच वन विल फॉलो द ग्रेटर सर्कल्स। क्या है मेरे पास? एक अल्फा पार्टिकल्स है और ये अल्फा पार्टिकल्स का मैं क्या लिख सकता हूं? 2 हीलियम 4, एक क्या है? एक ड्यूट्रॉन है, एक क्या है? ड्यूट्रॉन है। ड्यूट्रॉन को क्या मैं लिख सकता हूं? 1h1, ड्यूट्रॉन को मैं क्या लिख सकता हूं? सॉरी 1h2, ड्यूट्रॉन बाय ड्यूटेरियम जो इसको बोलते हैं यही वाला है, वह 2 हीलियम 4 और एक है 1h2।
तो मुझे रेडियस निकालना है अल्फाबेटिकल का, फॉर्मूला है भाई mb बाई क्यूबी। क्या दिया गया है, परपेंडिकुलर यूनिट सेम वेलोसिटी और सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो v और b सेम आ गया, जो कि खेल है यहाँ पे हमारा मास और चार्ज के बीच में है। मास मेरा क्या है, यहाँ पे 4 है, 4v बाई क्यू मेरा 2 है, 2b एटॉमिक मास, और ये चार्ज है इसका, एटॉमिक नंबर ही हमारा चार्ज है। तो 4v बाई 2b क्या है मेरा, 2v बाई v आएगा। ओके, r न्यूट्रॉन का वैल्यूज क्या आएगा ना, mb बाई क्यूबी में लिखूं, यहां से m डैश q डैश में लिख लेता हूं, m डैश के जगह 2v बाई चार्ज मेरा 1 इंटू v है, तो क्या है मेरा 2v बाई v है। जब मैं r अल्फा और rd की बात की तो मेरा आंसर आएगा 1, दैट इज r अल्फा इक्वल टू rd आएगा। तो सेम सर्कल, दोनों सेम सर्कल का रेडियस फॉलो करेंगे, सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल दे विल फॉलो। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना, ना इसमें किसी का दिक्कत हुआ। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखो, टू पार्टिकल्स x एंड y हैविंग इक्वल चार्जेस। x के पास जितना चार्ज था y के पास भी उतना चार्ज है, मान लीजिए कि qx इक्वल टू qy हम लिख लेते हैं। आफ्टर बीइंग ऑसिलेटेड टू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी x के पास जो था y के पास भी वही था। अच्छा, enter a region of uniform magnetic field and describes a circular path, circular path describe के of radius r1 and r2। तो मेरा fx का फॉर्मूला आएगा q इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी को थोड़ा ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाला वेलोसिटी, और fy को थोड़ा ऐसे लिखते हैं, ये वाला qx qy v इंटू b, सेम मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड आया है। अब देखो, अब ये Vx है और ये Vy है, मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम है, एंड डिस्क्राइब ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r1 एंड r2। तो रेडियस r1 एंड r2 का मतलब है, रेडियस का फॉर्मूला क्या है हमारा, mb बाई क्यूबी, mb बाई क्यूबी। तो ये rx क्या आएगा ना, मास ऑफ x इंटू वेलोसिटी ऑफ x बाई चार्ज ऑफ x इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ry मेरा आएगा मास ऑफ y, वेलोसिटी ऑफ y, चार्ज ऑफ y इंटू मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू दैट ऑफ y, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू दैट ऑफ y। इसी rx बाई ry को ले लो, इसी rx को ry से डिवाइड कर लो बाई मास ऑफ x इंटू वेलोसिटी ऑफ x डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है चार्ज ऑफ x बाई मैग्नेटिक फील्ड, मास ऑफ y इंटू वेलोसिटी ऑफ y, चार्ज ऑफ y इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यही वाला होगा। अरे हाँ या ना, तो देखो मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे क्या देगा, मोमेंटम देगा। अरे हाँ या ना, ये मुझे क्या देगा, मोमेंटम ही देगा। तो मैं क्या किया, इसको मोमेंटम लिख लिया। मोमेंटम ऑफ px क्यों लिखा मैं बताता हूँ, ये वाला मोमेंटम ऑफ py, px बाई py, यहाँ पे qx qy, अभी इक्वल है, इक्वल चार्ज हुआ तो क्या है, q q कैंसिल, b b भी कैंसिल, तो ये आ जाएगा इतना, rx बाई रेडियस ऑफ x तो रेडियस ऑफ y मेरा आया मोमेंटम ऑफ x बाई मोमेंटम ऑफ y। आया समझ में। अच्छा, दोनों सेम पोटेंशियल से मूव कर रहे थे, यहाँ पे और देखो, दोनों सेम पोटेंशियल से मूव कर रहे थे। अगर दोनों सेम पोटेंशियल से मूव कर रहे थे तो दोनों के पास एनर्जी भी सेम होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है, पोटेंशियल भी सेम है। तो एनर्जी ऑफ x, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये वाला एनर्जी है, या मैं लिख लेता हूं एनर्जी, E ऑफ x इक्वल टू qx इंटू vx और Ey इक्वल टू qy इंटू vy। As the charges are x and y are same and the potential are the same, so Ex इक्वल टू Ey, हाँ कि नहीं, Ex इक्वल टू क्या आया, Ey आया। अच्छा ओके, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2m, भाई ये y का है, ये x का है। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। अब देखो इधर px का स्क्वायर बाई py का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल्ड आउट, mx बाई my, तो मुझे मिला px बाई py इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ mx बाई my। आया समझ में कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ px बाई py इक्वल टू mx बाई my मुझे मिला। आया समझ में ना, इसमें किसी का दिक्कत है। चलो यहाँ पे डाल दो, अभी यहाँ पे क्या डालो ना, rx बाई ry इक्वल टू px बाई py का वैल्यूज क्या है ना, mx बाई my का स्क्वायर रूट
वहां से स्क्वायर रूट हटा दो, mx बाई my इक्वल टू rx बाई ry का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा देखो इधर, क्या आएगा देखो इधर, यही वाला आंसर आएगा, mx बाई my इक्वल टू rx बाई ry का होल स्क्वायर। आया समझ में? यही तो मुझे पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ x टू दैट ऑफ y, यही वाला आएगा, mx बाई my इक्वल टू rx बाई ry का होल स्क्वायर। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या आता है, हमने थीटा इक्वल टू 0 के लिए दिखा, थीटा इक्वल टू 180 में दिखा, मोशन मेरा स्ट्रेट लाइन में हो रहा था, थीटा इक्वल टू 90 के लिए का मोशन मेरा सर्कुलर में हो रहा था। अब थीटा इक्वल टू थीटा, कोई भी एंगल ले लो, कोई भी एंगल ले लो, इफ द चार्ज पार्टिकल, if the charged particle enters at an angle theta, at an angle theta, if the charged particle enters at an angle theta with magnetic field, with magnetic field, at an angle theta with magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मेरा एंटर कर रहा है थीटा एंगल से। मान के चल कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। आया समझ में? मैंने इस तरह कर लिया, आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? and this magnetic field is into the plane of paper, into the plane of paper। यहाँ पे मेरा बोर्ड है, तुम यहाँ पे plane of paper लिख सकते हो। तो मान के चल कि मेरा जो थीटा आ रहा था वो थीटा ऐसे एंट्री किया, वेलोसिटी जो है ऐसे मेरा थीटा, चार्ज पार्टिकल मेरा ऐसे जा रहा है। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे चलेगा तो क्या होगा, उसका मोशन के बारे में सोचो। इधर क्या मेरा इधर एक कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, और एक दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा v sin थीटा। ऐसा समझ में कि नहीं? एक इधर कंपोनेंट आएगा v cos थीटा, एक उधर कंपोनेंट आएगा v sin थीटा। ऐसा समझ में? तो ये जो हमको क्या पता है कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का रेस्पॉन्सिबल है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अरे हाँ या ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही रेस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है? v sin थीटा। हियर v sin थीटा, here v sin theta is responsible for magnetic force, v sin theta is responsible for magnetic force, and that v sin theta, due to v sin theta the charge particle describes a circular motion, due to v sin theta, charge particle describes circular path। और चार्ज पार्टिकल को v sin थीटा मेरा क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। तो भाई ये v cos थीटा क्या करेगा? v cos थीटा क्या है ना, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है। v cos थीटा पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में कि नहीं? v cos theta is parallel to magnetic field, v sin theta is perpendicular to magnetic field, and v sin theta describes the sorry, v sin theta moves the charge particle in a circular path, and v cos theta force the charge particle to move in a circular path। भाई यहाँ पे सर्कुलर पाथ भी हो रहा है और यहाँ पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन भी जा रहा है और यहाँ पे सर्कुलर पाथ भी हो रहा है। तो देखो इधर मैं कैसे करता हूं, तो यहाँ पे मोशंस क्या आएगा? तो यहाँ पे मोशंस जो आएगा वो कैसे आएगा? स्ट्रेट लाइन पे भी चलेगा v cos थीटा के लिए और सर्कुलर पे चलेगा v sin थीटा के लिए। तो यहाँ से अगर चार्ज पार्टिकल आया, ये स्ट्रेट लाइन पे भी जा रहा है, तो क्या ये वाला ऐसे होगा, क्या ये वाला ऐसे चलेगा? अरे हाँ या ना? अंदर के तरफ तो चल रहा है, मोशन मेरा अंदर के तरफ हो रहा है। आया समझ में? कितनी किधर चार्ज पार्टिकल अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ, और जो मोशन है, मोशन कैसे एंगल करके है, मान के चल के ऐसे हुआ तो परपेंडिकुलर, तो ये वाला ऐसे कर लो, थोड़ा टेढ़ा कर लो इसको, तो ये वाला जो क्या आएगा, ये अंदर की तरफ ही आएगा। तो फोर्स मेरा अंदर की तरफ है, मोशन मेरा अंदर की तरफ चल रहा है, मगर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे भी चल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हुई?
हमको वहां पे जो मिल रहा था क्या, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री था तो मोशन मेरा ऐसे हो रहा था, मोशन मेरा ऐसे हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हॉराइजॉन्टली आगे तो बढ़ रहा है और ये सर्कल भी घूम रहा है, हॉराइजॉन्टली आगे तो बढ़ रहा है मगर सर्कल भी घूम रहा है। तो ये वाले पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। कब क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। कब हेलिकल पाथ आएगा ना, जब थीटा इक्वल टू कोई भी एंगल होगा, थीटा इक्वल टू कोई भी एंगल होगा एक्सेप्ट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। If the charged particle enters the magnetic field at an angle theta except theta equal to 0 degree, 90 degree and 180 degree, then the charged particle describes a helical path. Charged particle describes a helical path in which it moves horizontally. It moves horizontally and also forms the circular path. It moves horizontally and also forms the circular path. आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना, इसी को हम हेलिकल पाथ बोलते हैं। अब इसके लिए ये जो हेलिकल पाथ हो रहा है इसका सर्कुलर मोशन पे रेडियस दिखेंगे कितना आता है और दिखेंगे हॉराइजॉन्टली कितना डिस्टेंस भी ट्रैवल करता है। आया समझ में। अब रेडियस के बाद पहले करो, पहले रेडियस के बात करते हैं। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, m इंटू वी परपेंडिकुलर बाई क्यू इंटू बी, हमको यही पता है। या फिर तुम इस तरह भी निकाल सकते हो, इससे लगाओ तो वी परपेंडिकुलर क्या है ना, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी। ये हो गया मेरा रेडियस, ये हो गया मेरा रेडियस। अगर यहां से ऐसे हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स आया, सर्कुलर मोशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, सर्कुलर मोशन के लिए परपेंडिकुलर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर रेस्पॉन्सिबल है। एंड when there is centripetal force there must be some magnetic force which provide the centripetal force। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, Fm इक्वल टू एफसी में मैं क्या लिख सकता हूँ, Fm इक्वल टू एफसी में Fm में मेरा क्या आएगा, क्यू वी वी साइन थीटा, और एफसी में क्या आएगा ना, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर होना चाहिए। मगर यहाँ पे कौन से कंपोनेंट के लिए मेरा हो रहा है ना, वी साइन थीटा के लिए, तो वी साइन थीटा का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं। तो यहां से क्या मिला मुझे ना, r इक्वल टू एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वी साइन थीटा कैंसल आउट हो गया, एम वी साइन थीटा बाई क्यू बी। क्या आएगा मेरा ना, एम वी साइन थीटा बाई, यहां से ऐसे कौन कर सकते हो, यहां पे भी ऐसे कर सकते हो। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना इसमें कोई दिक्कत है, ना इसमें कोई दिक्कत है। अब मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम पीरियड चाहिए। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है ना, एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू भी, एम भी परपेंडिकुलर सॉरी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है ना, 2 पाई आर बाई वेलोसिटी, 2 पाई आर बाई वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। 2 पाई आर का वैल्यू क्या है ना, एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी, इधर एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी डिवाइडेड बाई वी परपेंडिकुलर क्या है ना, वी साइन थीटा है, वी साइन थीटा है, वी साइन थीटा कैंसल आउट, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो टाइम पीरियड क्या मुझे मिल गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी। आया समझ में कि नहीं। तो वहां पर मैंने बोला था कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में मूव कर रहा था तो टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी थीटा इक्वल टू एंगल थीटा पे भी मूव करेगा तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। ऐसा समझ में, t इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी आ गया। तो उसी तरह मेरा फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम, क्यू बी बाई 2 पाई मेरा फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा। आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत है। अब इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूं और इसके लिए पिच लिखेंगे। पिच क्या होता है ना, हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस। पिच क्या होता है ना, हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस। क्या दिखेंगे ना, पिच दिखेंगे। पिच क्या होता है ना, हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल इन ए वन टाइम पीरियड। हॉराइजॉन्टल distance traveled in one time period। आया समझ में। हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। तो पिच इक्वल टू हॉराइजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे मिलेगा भाई, हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी इनटू
टाइम पीरियड। हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी मतलब कौन है, यहाँ पे हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी भाई v cos थीटा है। हॉराइजॉन्टल वेलोसिटी कौन है, v cos थीटा है। तो v cos थीटा इनटू पिच को p पे रिप्रेजेंट कर लो, टाइम मेरा क्या है ना 2 पाई m बाई क्यूबी, यही वाला आएगा फॉर्मूला 2 पाई m बाई क्यूबी। आया समझ में, आ रहे हाँ या ना, आया समझ में ना, हाँ या ना। चलो स्क्रीन को पॉज करके यहां तक कर लो, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, मान के चलिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है which is directed into the plane of paper, which is directed into the plane of paper। आया समझ में कि नहीं। एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज B इक्वल टू 3 टेस्ला दिया गया है। एंड द प्रोटॉन, ए प्रोटॉन पार्टिकल, प्रोटॉन इज मूविंग एट एन एंगल 30 डिग्री, एट एन एंगल 30 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे क्या पूछा गया है, मुझे रेडियस पूछा गया। वेलोसिटी क्या है मेरा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से ये चल रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो मुझे पूछा गया है कि रेडियस निकालो, पिच निकालो, टाइम पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। आया समझ में कि नहीं, टाइम पीरियड निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो। तो कैसे करेंगे, देखो R इक्वल टू क्या मुझे दिया गया है ना, एम बी साइन थीटा इक्वल बाई क्यूबी, क्योंकि कुछ एंगल पे जा रहा है। तो थीटा मेरा क्या है 30 डिग्री, थीटा तुमको पता है। मास क्या है था प्रोटॉन का ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ये होता है वन किसका, प्रोटॉन का मास। चार्ज क्या होता है ना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। खुद निकाल सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा ना 2 पाई m बाई क्यूबी, सब कुछ दिया गया है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा क्यूबी बाई 2 पाई m। पिच का फॉर्मूला आएगा, सॉरी पिच का फॉर्मूला आएगा v cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, दैट इज 2 पाई m बाई क्यूबी। सब कुछ निकाल सकते हो। आया समझ में। चलो ये वाला कर लोगे। चलो इस तरह का, इसका क्वेश्चन इस तरह का आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है हुआ। चलो नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट में क्या आएगा, मान के चल कि कोई चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके हम क्या पढ़ेंगे ना, लॉरेंज फोर्स। क्या पढ़ेंगे उसके लिए ना, लॉरेंज फोर्स। ये लॉरेंज फोर्स क्या होता है, मान के चल कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे चार्ज पार्टिकल है और इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है, किसमें प्लेस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया है। तो चार्ज पार्टिकल कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मान के इधर है तो चार्ज पार्टिकल इधर आएगा, तो उसमें फोर्स कैसे लगेगा ना, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगेगा ना, Q इंटू ई वेक्टर। क्या लगेगा ना, Q इंटू ई का वेक्टर। आया समझ में कि नहीं, आ रहे हाँ या ना। ये चार्ज पार्टिकल है और इधर फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड में, सोच जरा, अब मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है। तो ये क्या करेगा, मूव करेगा। मान के चलिए मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर चल रहा है, ये कहीं पे भी मूव करे, ऐसे मूव करे तो थीटा एंगल पे मूव कर रहा है मान के चल। तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, Q होल इंटू V क्रॉस B, Q होल इंटू V क्रॉस B। अरे हाँ या ना। तो एक चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां पे एक ऐसे रीजन पे है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। एक चार्ज पार्टिकल एक ऐसा रीजन पे है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो वहां पे नेट फोर्स कितना आएगा, Fe प्लस Fem करूंगा, उसी नेट फोर्स को हम बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स, नेट फोर्स acting on a charge particle, acting on a charge particle, acting on a charge particle when it is placed, when it is placed in both electric field and magnetic field, in both electric field, sorry, is placed in a region, ऐसे लिखते हैं, is placed in a region, is placed in a region, is placed in a region where both electric field, where both electric field and magnetic field is acting, is called Lorentz force, is called Lorentz force।
जगह है ना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। तो ये नेट फोर्स होता है, ये क्या होता है, नेट फोर्स। नेट फोर्स इज द, मतलब लॉरेंज फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। लॉरेंज फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो एफ लॉरेंज को हम क्या लिखेंगे, एफ लॉरेंज को लिखेंगे Q इंटू ई का वेक्टर प्लस Q होल इंटू V क्रॉस B, Q होल इंटू V क्रॉस B। तो एफ लॉरेंज क्या आया मेरा, एफ लॉरेंज क्या आया मेरा, Q होल इंटू ई वेक्टर प्लस V क्रॉस B। आया समझ में कि नहीं, अरे हाँ या ना, ये आया मेरा एफ लॉरेंज का वैल्यू। कोई दिक्कत है क्या इसमें, अरे हाँ या ना। तो ये लॉरेंज फोर्स था विच इज द वेक्टर सम ऑफ, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ, लॉरेंज फोर्स इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स and magnetic force, and magnetic force. Lorentz force is the vector sum of electric force and magnetic force. आया समझ में ना, इसमें कोई दिक्कत है, स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज लिख लो। ओके, तो ये था आज के लिए इतना ही। वाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया चीज के साथ। वाह ठीक, अगर आज के क्लास में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखो। वाह, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।